કેન્દ્રીય નાણાં રાજ્યમંત્રી ભાગવત કરાડની ઉપસ્થિતિમાં જલોત્રા અને સાસમ ખાતે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા યોજાઈ। બનાસકાંઠા જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓના ગામોમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા ફરી રહી છે, જેના દ્વારા ગ્રામજનોએ ઘર આંગણે વિવિધ સરકારી યોજનાઓના લાભ મળી રહ્યા છે। ભારત સરકારના નાણાં રાજ્યમંત્રી ભાગવત કરાડની ઉપસ્થિતિમાં વડગામ તાલુકાના જલોત્રા અને પાલનપુર તાલુકાના સાસમ ખાતે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો રથ આવતા ગ્રામજનોએ સ્વાગત કર્યું હતું। કેન્દ્રીય નાણાં રાજ્યમંત્રી ભાગવત કરાડે જણાવ્યું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ દેશની તસવીર અને તકદીર બદલી દીધી છે। તેઓએ રાષ્ટ્રને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત અને આતંકવાદ મુક્ત નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું છે। ભારત હવે વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે। એ સંકલ્પને લઈને વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે, જેના દ્વારા ગામે ગામ રથ સાથે અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ જઈને ગ્રામજનોને યોજનાની માહિતી અને લાભો અપાવી રહ્યા છે। મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વમાં વિકાસનું મોડેલ બનીને ઉભરી રહ્યું છે। ભારતમાં પૂર્વોત્તર રાજ્યોનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં કલમ 370 દૂર થવાથી શાંતિની સ્થાપના થઈ છે। ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકો વિવિધ જન કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ લઈ રહ્યા છે। નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશની શાન વધી છે। તેઓએ ગ્રામજનોને યોજનાઓનો મહત્તમ લાભ લેવા અને અન્ય લોકોને અપાવવા માટે અપીલ કરી હતી। લોકસભા સાંસદ ભરતસિંહજી ડાભીએ જણાવ્યું કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાજકારણમાં વિકાસ સાથે સલામતી આપી છે। દરેક ધર્મના લોકો શાંતિથી પોતાનો વ્યવસાય કરી શકે એવું વાતાવરણ બનાવ્યું છે। દેશને વિશ્વગુરુ બનાવવા માટે પ્રધાનમંત્રી પ્રયત્નશીલ છે। આ યાત્રા થકી યોજનાઓના લાભ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચી રહ્યા છે। સંગઠનના જિલ્લા પ્રમુખ કીર્તિસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું કે આપણા પ્રધાનમંત્રી અને વૈશ્વિક નેતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા આપણું રાષ્ટ્ર વિશ્વગુરુ બને અને સૌ સુખી અને સમૃદ્ધ બને સંકલ્પ સાથે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। દેશના વિકાસ માટે લોકોનો સામૂહિક પ્રયાસ જરૂરી છે। આપણે સૌ એક થઈ પ્રયાસો કરવાના છે। કેન્દ્રીય મંત્રી ભાગવત કરાડે વિવિધ યોજનાકીય સ્ટોલની મુલાકાત લીધી। જુદી જુદી યોજનાના લાભાર્થીઓ મેરી કહાની મેરી જુબાની થીમ હેઠળ પોતાને મળેલ યોજનાના લાભની વાતો કરી હતી। વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા આ કાર્યક્રમમાં પાટણના સાંસદ ભરતસિંહજી ડાભી, બનાસકાંઠાના સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી, ધારાસભ્ય અનિકેતભાઈ ઠાકર, પૂર્વ ધારાસભ્ય મણિભાઈ વાઘેલા, નંદાજી ઠાકોર, અશોકભાઈ જોશી, દશરથજી ઠાકોર, સ્નેહલભાઈ પટેલ, ભરતસિંહ ભટ્ટેસરિયા, પ્રવીણસિંહ રાણા, ફલજીભાઈ ચૌધરી, સાગર ચૌધરી, શ્રેયાંશભાઈ પ્રજાપતિ, ગોવિંદભાઈ ચૌધરી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સ્વપ્નિલ ખરે, પ્રાંત અધિકારી કમલ ચૌધરી સહિત અધિકારીઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો હાજર રહ્યા હતા। किसानों के लिए सस्ते इंटरेस्ट यानी ब्याज में इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के लिए भी पैसा मिलता है। तो ये अलग अलग 27 स्कीम, 17 स्कीम्स ग्रामीण के लिए और 17 स्कीम शहरों के लिए इस गाड़ी के माध्यम से बताने का प्रयास हो रहा है। हम देहात में रहो या शहरी भाग में रहो, हर एक को खुद का आरोग्य हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। अभी आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है, आयुष्मान भारत का कार्ड आपने लिया तो 5 लाख रुपए तक आपके फैमिली को पूरा दवा, ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, फ्री में काम होता है। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से और आपको कार्ड मिलेगा। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से विनती करने आया हूं कि आप ये स्कीम जो है अलग अलग उसके ऊपर रजिस्टर हो जाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है ये स्कीम 30-40% लोगों को तक नहीं तो हमें 100% तक लेके जाना है। हमें देखना है कि हर एक भारतीय नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमें देखना है कि हर एक भारतीय नागरिक की इनकम बढ़े। हर एक भारतीय नागरिक, युवा बच्चा अच्छा तरह से पढ़े। जो बच्चे खेलने में जाते हैं, खेल खेलते हैं, उसका भी खेल अच्छा कैसा हो। किसानों की आमदनी कैसी बढ़े। उतना ही नहीं तो स्ट्रीट वेंडर यानी रास्ते पे काम करने वाले, आप समझते हैं जो देहात में से समझो एकादा किसान शहर में गया, भाजीपाला विक्रेता है, फ्रूट विक्रेता है, उसको भी प्रधानमंत्री स्वनिधि माध्यम से 80,000 तक पैसा सिर्फ 2% इंटरेस्ट से मिलता है। तो हम सभी को अपना खुद का बिजनेस बढ़ाना है।
खुद की खेती अच्छी करनी है तो पैसे की तो जरूरत लगती है। तो पैसे देने के लिए भारत सरकार राजी है, भारत सरकार तैयार है, लेकिन पैसे देते समय जैसे दूसरे राज्यों ने, दूसरे देश ने किया, फ्री में पैसा नहीं है। जो पैसा देंगे पैसा का यूटिलाइज करो, उससे अपनी इनकम बढ़ाओ और पैसा वापस करो। फ्री में देते तो कितना दिन देंगे? तो हमें भारत देश के नागरिक को सशक्त बनाना है। युवा के विकास के लिए काम हो, ऐसे अलग अलग स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री होके 9.5 साल हो गए। 2014 पूर्व का भारत और 2014 का बाद में का भारत अगर देखें तो एक भारत अभी विकसित भारत होने जा रहा है। भारत जो पूरे देश को, पूरे जगत को मार्गदर्शन करने वाला भारत हो जा रहा है। और इसी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प अभियान शुरू हो चुका है। और ये विकसित भारत संकल्प अभियान क्या है? ये विकसित भारत संकल्प अभियान में जैसे आपके गांव में ये गाड़ी आई है, ये मोदी जी की गाड़ी है, मोदी की विकास की गाड़ी है, मोदी की गारंटी की गाड़ी है। इसके माध्यम से हर गांव में जाके जो अलग अलग स्कीम्स बताए जाते हैं और अलग अलग स्कीम के माध्यम से देहात में क्या किसान हो, देहात में की महिला हो, सभी के लिए स्कीम के माध्यम से मदद कैसी हो, इसी का मालूमात दी जाती है। विकसित भारत संकल्प अभियान, यह यात्रा बनासकांठा जिले में सासम गांव में आई है। इस गांव में इस यात्रा का कार्यक्रम करते हुए मेरे साथ यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री भरत सिंह धाबी जी और हमारे यहाँ के अध्यक्ष श्री कीर्तिशाही वाघेला और बनासकांठा के सांसद पर्वत भाई पटेल, ये सब साथ में हैं। साथ ही हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री खरे जी भी हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस क्षेत्र में यात्रा बहुत ही अच्छी काम कर रही है और अलग अलग जो केंद्र सरकार की स्कीम्स है, स्कीम के माध्यम से हर देहात में जाके जो सभी लोगों को स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। सासम में अगर हम देखें तो कम से कम 1,500-2 हज़ार तक लोग इकट्ठा आए हैं, जिसमें महिला है, कामगार भी है, किसान भी है, सब लोग एकत्र है और सभी स्कीम के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन। अभी तक इसमें अगर हम देखें तो 599 इस जिले में, बनासकांठा में 599 ग्राम पंचायत तक ये यात्रा गई है और टोटल लोगों ने जिसमें जो सहभाग लिया है तो 1,65,580 लोगों ने सहभाग लिया है, जिसमें पुरुष और महिला, पुरुष का अगर देखें तो 1,04,623 और महिलाओं की 61,122 लोग हैं। इसमें अगर हम सिर्फ यात्रा देखें, हम स्पीच देके निकल नहीं जाते। अलग अलग स्टॉल्स भी हैं जिसमें हेल्थ चेकअप होता है, कोई डायबिटीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर है, उसका चेकअप करके उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जाता है। इसमें बैंक के भाई एक स्टॉल है जिसमें जनधन अकाउंट के माध्यम से उसका अकाउंट खोला जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 20 रुपये का उसका इंस्टॉलमेंट का कंसेंट लेते हुए उसको 20 रुपये में 2 लाख का इंश्योरेंस कैसा मिलेगा। उसी तरह अलग अलग स्कीम्स हैं जिसमें जीवन ज्योति बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, इसका भी हो जाता है। अलग स्कीम्स जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, जिसके माध्यम से 100 रुपये में गैस मिलता है। अटल पेंशन योजना, इसके माध्यम से आफ्टर 60 ईयर्स महीने को 1,000 से 5,000 तक पैसा मिलता है। वैसा ही प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनको घर नहीं है उनको घर देने का भी काम चल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको देहात में अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है।
और मुझे आपसे इस समय चर्चा करते हुए हर्ष होता है कि यह बहुत ही यशस्वी प्रोग्राम है और आपके माध्यम से सभी को मैं विनती करता हूँ, जिस गांव में यात्रा आएंगी वहाँ इनका स्वागत करते हुए सभी इसमें शामिल हो और हमें हमारा जो संकल्प है सबको साथ में लेके एक जन आंदोलन, एक जनता में एक चळवळ खड़ा करने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनाएगा और आखिरी में हम सभी लोगों को एक वचन या प्रण देते हैं, जिसमें संकल्प देते हैं, जिसमें वो शपथ लेते हैं और शपथ लेके इसका कार्यक्रम होता है। बहुत ही यशस्वी प्रोग्राम हो रहा है। मैं गुजरात के सभी भाइयों बहनों का इसमें एक बार विनती करता हूँ कि आप इस यात्रा में शामिल। पाटन लोकसभा में वडगाम विधानसभा में जलोत्रा गांव में हम सब आए हैं। मेरे साथ यहाँ के लोकसभा सांसद दाभी जी भी है और हमारे लोकसभा के प्रभारी अशोक जोशी भी है, सभी पदाधिकारी और शासकीय अधिकारी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में जो विकसित भारत संकल्प अभियान चल रहा है, ये यात्रा यहाँ आई है और इसके माध्यम से अलग अलग स्कीम्स जो है, स्कीम्स को सैचुरेट कैसा करें, लोगों को मदद कैसा मिले, और जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हो, गरीब कल्याण योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, इसी को सभी के इन्वॉल्वमेंट हो के ये सैचुरेट कैसा बने, इसीलिए सब लोग, हम पदाधिकारी हो, लोक प्रतिनिधि हो और शासन के अधिकारी हम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें आदेशित किया है कि भारत को विकसित बनाना है, इसीलिए हमें सब मिलके हर गांव में जाके एक जन आंदोलन, एक जनता की चलवल करना है और इसके माध्यम से ये भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है और हम सब मिलके ये प्रयास करें तो ये पॉसिबल है और प्रधानमंत्री जी को हम संकल्प को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि आप इसमें शामिल हो जाएं।